Alhamdulillah, all good with us. Zabardast. So, Assalamu alaikum, audience. Thank you for joining us. My name is Sheikh Waqas. I'm your host for today. And welcome to another episode of Happiness Hour, a series of online talks to find and discover true and authentic happiness. So, we have our two maestros with us, who are maestros, mentors, coaches, and have been spreading happiness among you guys since a few years now. So Alhamdulillah, I'm very blessed to have you guys on the show, and ये एक बड़ा एक इनिशिएटिव जो हम लोगों ने लिया है. I'm so proud of you guys कि आप लोगों ने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से आप लोगों ने टाइम निकाला और इस टॉपिक पे बात किया जिसका मे बी इन द लॉन्गर रन और इन द शॉर्टर रन ना आपको ना मुझे कोई फिट होगा. ये सिर्फ हम लोगों के दिल की आवाज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं. True. True. One of his life goals is to enable people to lead a happy, healthy life. He believes in giving back to society and feels it is an obligation to help people. So, changing thinking patterns and living in a present and a present and changed life. He wants to spread his this through कि people learn from us and जो चीज़ें वो हमसे सीख रहे हैं उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें. हमारे दूसरे गेस्ट हैं शुजा भाई. शुजा भाई का माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है. सेम गोल्स माशाल्लाह से ही इज़ कमिटेड टू एम्पावर एंड हार्नेस पीपल टू एक्सप्लोर unleash their own potentials to create a more fulfilled, rewarding, and happy life. Shuja Bhai is NLP practitioner, transformation life coach, happy life mentor, and also holds a telecom engineering degree with MPhil in management degrees from NUST. So, grand welcome to you guys again. माशाल्लाह आप लोगों ने आज शो को खुद ही होस्ट और गेस्ट कर लिया and I'm really thankful to you guys. Okay, this is what we are talking about: positive attitude, positive mindset. Things can go wrong, things can be uncertain, things can be chaotic, but this is how a positive mindset and attitude can help you in tough times. Okay, we don't have to wait for someone to come and become a superman for us. We have to become we have to become that superhero of ourselves, जिसे कहते हैं ना अपनी रियल लाइफ के अंदर. सो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बड़े मजे की आपके साथ डिस्कशन शेयर करना चाहूँगा. आई वाज डूइंग अ स्टडी तो मुझे ऑन हैप्पीनेस, तो आई फाउंड आउट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इन यूके उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर है. मजे की चीज़ ये कि ये 12 वीक्स का कोर्स है जो कि आपको सिखाता है कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस, how to live a content and fulfilled life. They have combined psychology and neuroscience strategies and developed this course. And believe me, you will be surprised to know that 4,000 plus students enrolled. Wow. 4,000 plus students enrolled in the first semester. And this shows कि कितनी भूख है लोगों में खुशी को तलाश करने की. हम लोगों ने बहुत दफ़ा ये बात भी की है और करते भी आए हैं कि लोगों ने खुद का ताल्लुक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ दिए. एंड दिस इज़ वेयर वी वेंट रॉन्ग. जब तक खुशी का ताल्लुक मटेरियल के साथ होगा तो वो मटेरियल अगर आपके पास है तो आप खुश हैं, अगर नहीं है तो आप ना खुश हैं. जबकि इसका ताल्लुक जो है, जितना भी आप लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी से है, इनर सेल्फ से है, इनर बिलीफ सिस्टम से है. So, before starting our main topic, I would like to, have your reviews on this course, and what do you think about why people are missing this much happiness in their lives? So, I will start with Naeem Bhai. Naeem Bhai, what are your reviews? Thank you, Vikas bhai. Thank you very much for coming over and introducing us. I really believe कि हमें ये contribution जरूर करनी चाहिए. It is good for our life, for our families, for our communities, and for the whole people. जहाँ तक आप बात कोर्स की बात कर रहे हैं, it's a very interesting course. I have also gone through the course. Very nice one. और इसकी ना बहुत ज्यादा जरूरत है. मैं पिछले किसी और वीडियो में भी कहा था, मैं
एक बुक पढ़ रहा था, डैनियल गोलमैन की, फोकस के नाम से बुक है, लंबा सा टाइटल है, फोकस इज द मेन थिंग। उसमें वो कहता है कि जी आज से 50 साल पहले ना हमारे माइंड पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज्यादा नहीं होता था, ना फेसबुक थी, ना गूगल थी, ना मीडिया था, कुछ भी नहीं था। आजकल हमारे माइंड पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम इज स्पेंट कि हम उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम फिल्टर आउट करके मेन इंफॉर्मेशन तक पहुंचे। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई, दुनिया फास्ट पेस में मूव हो गई, हम मटीरियलिस्टिक हो गए। तो इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि आज से 50-100 साल पहले से शायद ज्यादा जरूरत है हमें ये सीखने की कि हाउ टू बी हैप्पी एंड व्हाई टू बी हैप्पी। इसकी बहुत सारी आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देयर आर मल्टीपल रीजंस, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से, वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से, एक रेस में आने की वजह से हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे ये समझने की कि खुशी है क्या, वो क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है खुश रहने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए, और उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ना सिर्फ ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, MIT, कैम्ब्रिज, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस के खुशी कैसे हासिल हो सकती है और खुश रहना क्यों जरूरी है। तो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट के ऐसे कोर्सेज फ्यूचर में और ज्यादा होने चाहिए। फैंटास्टिक सर। शुजा भाई, आपके क्या रिव्यूज है इसके बारे में? वकास, एक तो ये बिल्कुल ये जो आपने भी बात की कि इन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने हैप्पीनेस का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो हम पहले साकिब नहीं में बात कर रहे थे कि दिस इज अ ग्लोबल शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस लेवल, के उससे पहले ये टॉपिक्स जो थे ये बिल्कुल सॉफ्ट टॉपिक समझे जाते थे, और साइंस जो थी या यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज स्टडीज जो थी वो हैप्पीनेस के बारे में बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, और दिस वाज समथिंग वेरी पर्सनल। लेकिन नाउ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। इसमें हैप्पीनेस के बारे में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसको यही कहता हूँ कि हैप्पीनेस जो है वो एक्चुअली बुनियादी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि इंसान कोई भी काम जिंदगी में करता है तो वो एक्चुअली करता ही इसलिए है कि वो कुछ एंटिसिपेट करता है कि मुझे ये काम कर लेने से, जब मैं ये कुछ चीज कर लूंगा, ये चीज मुझे हासिल हो जाएगी तो मुझे कोई किसी ना किसी टाइप की खुशी हासिल होगी। तो हैप्पीनेस जो है दैट इज एक्चुअली हमारी लाइफ का एक प्राइमरी जिसे कहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी सी अराउंड अस के बहुत सारे लोग जो हैं लॉन्ग रन ऑफ लाइफ के अंदर दे आर नॉट एज हैप्पी एज दे वांट टू बी। बल्कि डॉक्टर डेविड हॉकिंस की जो उसका जो नजरिया उसकी किताब के मुताबिक वो कहता है कि अगर कोई एक जीरो लेवल ऑफ हैप्पीनेस हो तो तकरीबन 80% लोग जो हैं दे आर स्टिल लिविंग बिलो द क्रिटिकल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस है तो बहुत ज्यादा इन डिमांड, लेकिन इसको हासिल कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, और वो कैसा आपको एक माइंडसेट जो है वो आपको दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि आप इट इज नॉट वन डे जॉब, इट इज नॉट समथिंग कि आप आज सीख लेंगे और आज मैं आपको कोई हैप्पीनेस का फार्मूला बता दूंगा एंड यू विल मेक अ हैप्पी लाइफ फॉर यू एंड फॉर अदर पीपल। नो, आई थिंक दैट इट इज अ माइंडसेट, यानी कि यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन टाइप ऑफ माइंडसेट। It is after that you can pursue and have or to harvest a really happy life. This is it. वो कहते हैं ना सर भाई कि चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। तो Exactly. इट इज अ माइंडसेट, इट इज अ माइंडसेट। It is. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इसी में मैं एक कोट है वो शेयर करना चाहूंगा कि we are living in a climate where there are challenges for mental well-being, especially among the younger generations. And this is very true कि हमारी जो यूथ है इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर इसको अफेक्ट हुआ है इस ग्लोबल पेंडेमिक से या कोई भी इशू जो होता है हमारे माशरे में, तो सबसे पहले यूथ उसको जिसे कहते हैं ना अडॉप्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका लेके आती है। So मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि why we see a lot of anxiety and depression in our society and especially the youth? नहीं भाई? Thank you, Vikas bhai. Again, wonderful question.
मैंने इसको पार्टली आपके इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सी इस पे डिस्कशन की थी। डिप्रेशन और एंजाइटी शायद इसलिए भी है कि वी आर कंफ्यूज, यूथ मोस्ट ऑफ द टाइम इज कंफ्यूज, they are not focused, they don't have a clear idea कि उन्होंने क्या करना है। अगेन ऐसा क्यों है, जो मैंने पहले बात की थी कि वी हैव इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब हम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी हमारे आसपास, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो आई वाज टॉकिंग टू अ कपल ऑफ पीपल, और रिसर्च ये कहती है कि इस पैंडेमिक से पहले कोई 2.25 आवर्स अ डे आपका सोशल मीडिया यूजेज टाइम था, दैट हैज इंक्रीज टू 5 to 6 आवर्स अ डे। तो यहाँ भी एक हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट्स भी लिखे हैं कि जी सोशल मीडिया इन बातों की बजाय बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आई वाज टॉकिंग टू सम अदर फ्रेंड्स आल्सो कि आप थोड़ा नेचर से करीब हों अगर, और ये डिजिटल जितने भी फोरम्स हैं या मीडियाज हैं इनसे थोड़ा सा दूर हों, तो शायद आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि हमने प्रेजेंट में रहना है। अभी शुजा भाई जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फोकस की, माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की, ये सारी चीजें हमें ये सिखाती हैं कि हमने प्रेजेंट में रहना है। जो कुछ हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके साथ जिंदा रहना, उनके साथ परफॉर्म करना है। तो जब हम जितनी जल्दी जो लोगों को ये समझ आ जाता है कि प्रेजेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उतनी जल्दी उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म हो जाती है। आप डिप्रेशन में तब जाते हैं जब आप यू डोंट लेट गो थिंग्स, जब आप फॉरगिव नहीं करते, जब आप माफ नहीं करते। माफ अपने आप को भी करना है और माफ दूसरों को भी करना है। जब हम ये दोनों काम नहीं कर पाते तो हम शायद पास में रहते हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उस वक्त हम एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा इस बात के साथ कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो अगर हम नेगेटिव गुमान करते रहें तो शायद नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी, और पॉजिटिव करते रहें तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। साइंस भी इस बात को ऐसे कहती है कि जब भी आप कुछ सोचना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में न्यूरॉन्स दे गेट कनेक्टेड एक्चुअली, अगर मैं बिल्कुल सादा लफ्जों में बात करूं तो, और आप उनके कनेक्शन वही स्ट्रांग होते जाते हैं तो आपको उसी तरह की चीजें पिछली भी याद आती हैं, और आपके और स्ट्रांग कनेक्शन होने से वही काम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव गुमान करना शुरू कर दें, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें, तो शायद हमारी यूथ में हर लेवल के लोगों में, हर एज के लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो मैक्सिमम हद तक मैं कहूँगा खत्म हो जाएगी। आई हैव प्रैक्टिस्ड दीज थिंग्स इन माय लाइफ, और मैंने इसमें बहुत ज्यादा फील किया है कि दीज आर नॉट समथिंग जो हम कोई किताब से बात कर रहे हो, ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, और इसमें बड़े विजिबल डिफरेंसेस मैंने अपनी लाइफ में, अपने लव्ड वंस की लाइफ में और अपनी कम्युनिटी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया। जबरदस्त, थैंक यू नईम भाई, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। वंडरफुल, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। आपकी जो बातें थी वो बड़ी टू द पॉइंट और बड़ी एक्यूरेट थी, और यही एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि, और यही हमारा मकसद भी था थ्रू दिस सीरीज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, कि हम लोग ये जो हमारी यूथ है जो कि इस टाइम इंगेज हो चुकी है, डिप्रेस्ड हो चुकी है इन चीज़ों में, हाउ टू यू नो bring them out of this chaos जो उनके ज़हनों में चल रहा है। शुजा भाई, this leads to the question, and the question is, what is positive mindset and how do you define someone, or how do you see in someone कि यार this person is having a positive attitude? तो इसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि, क्योंकि आई बिलीव कि डिप्रेशन से फाइट करने का सबसे पहला जो हथियार हमारे पास है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हम लोग नेगेटिव माइंडसेट होंगे और डिप्रेशन में जाएंगे तो आई थिंक और ज़्यादा खराबा होगा, और ज़्यादा खराबी पैदा होगी हम लोगों के लिए। बट अगर हम लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है और अगर हम किसी वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो भी जाते हैं तो दैट पॉजिटिव माइंडसेट
can help us coming back to our normal life. So how do you define positive mindset? थैंक यू वकास। पहले तो जो नईम भाई ने बातें की हैं उसी में इसके बहुत सारे जवाब हमें मिल जाते हैं। एक नईम भाई ने बात की प्रेजेंट के अंदर रहने की। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन पॉजिटिव माइंडसेट। और बल्कि अगर हम इसी से ही रीड लें तो हमें बहुत सब चीज की समझ आ जाती है कि व्हाट इज नॉट बीइंग इन पॉजिटिव माइंडसेट। कि जब आप प्रेजेंट के अंदर नहीं है, यू आर नॉट इन द एक्सेप्टेंस मोड। आप जो व्हाट इज है, जहां है और जैसे है की बुनियाद पे अगर आप उसे कबूल नहीं कर रहे, आपको फ्यूचर के बहुत सारे आप ओवर एम्बिशंस है, या आपको फ्यूचर के फियर लाहक हैं, या आप माजी के रिग्रेट्स हैं, उनको आप अभी तक साथ लेकर चल रहे हैं, उस बैगेज को साथ लेकर चल रहे हैं, एंड यू आर नॉट एक्चुअली हैप्पी और ओके विद व्हाट इज, जो आज है, जो आज का मोमेंट है, व्हाट इज द प्रेजेंट। अगर आप उसके साथ आप ओके नहीं है तो यू आर एक्चुअली मिसिंग द गिफ्ट ऑफ द प्रेजेंस। इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा जाता है, बिकॉज इट हैज द पावर। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट है, दैट इज एक्चुअली नॉट बीइंग कि आपके कोई रोज कलर्ड लेंस हैं जिससे आप दुनिया को बहुत जो है वो विशफुल थिंकिंग के साथ देख रहे हैं कि जी हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि मैं इसे कहूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट इज दैट कि आप लाइफ के चैलेंजेस जो हैं, जो कुछ भी लाइफ आपको प्रेजेंट कर रही है, आप उसको किस तरह एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ एक्सेप्ट करते हैं। आप रेजिस्ट नहीं करते। नॉट ओनली दैट यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट लाइफ इज प्रेजेंटिंग यू, बट ऑल्सो दैट यू आर फाइंडिंग द सिल्वर लाइनिंग आउट ऑफ द बिहाइंड द चैलेंजेस। तो दिस इज लाइक बीइंग और हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर ये है कि जब आपको कुछ चैलेंज आ जाता है, जबरदस्त। जब आपको कोई आपकी जी आवाज शायद थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है। नहीं भाई, कैन यू जी हियर शुजा भाई? Yes, I can hear him. हेलो। ओके जी वकास, आ रही है आपको आवाज मेरी? जी बिल्कुल आ रही है शुजा भाई, बिल्कुल आ रही है। जबरदस्त ओके ओके जबरदस्त। ओके। तो ओके, बस जो आपने मुझसे पूछा था कि पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने अंदर देख लें कि जब आपको कोई चैलेंज आता है, जब कोई नेगेटिव या चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, और जब आप या फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आपका इनर डायलॉग जो है, हाउ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, आर यू बीइंग पेसिमिस्टिक और आप जो है वो नेगेटिव साइड्स को देखते हैं, या यू हैव द ज़ील एंड जेस्ट कि आप अपनी एबिलिटीज को आप फोकस करते हैं कि यस आई कैन ओवरकम दिस चैलेंज। और आप जो भी आपके फेलियर्स हैं या जो भी सेटबैक्स हैं, उन्हें आप उससे बॉग डाउन फील करते हैं, और यू फाइंड सम लर्निंग अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दैट। वो जिस तरह कहते हैं ना, विंस्टन चर्चिल का कोट है कि जो पेसिमिस्ट है वो हर अपॉर्चुनिटी में से प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो हर प्रॉब्लम में से कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है। तो दिस इज लाइक बीइंग इन द पॉजिटिव माइंडसेट। वंडरफुल वंडरफुल शुजा भाई, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। और अब आप दोनों की बातों से मैंने कुछ इसमें से पॉइंट्स निकाले। उन पॉइंट्स के अंदर जी एक बात ये थी कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो गया, एम्पैथेटिक की बात की नईम साहब ने कि हाउ टू बिकम मोर एम्पैथेटिक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि what are the core strategies, what are 2 3 4 things a person should do to attain or to achieve that positive mindset? ये क्वेश्चन पहले नईम भाई से और फिर शुजा भाई आपसे। देखिए, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका ना बड़े कुछ प्रिसाइज से आंसर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूँ। उन स्टेप्स पे ना शुजा भाई ने ऑलरेडी थोड़ी सी बात की है। पहला स्टेप ये है कि एक्चुअली यू आइडेंटिफाई कि जिसको ना सेल्फ टॉक भी कहते हैं, कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ ऐसी, आप ट्रैफिक के रश में फंस गए हैं, यू आर वेटिंग फॉर अगली 4 गाड़ियां निकलें तो सिग्नल पे आप निकलेंगे, तो व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। क्या हमेशा कोई पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आता है या ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आता है?
क्या हमेशा आप ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव सोचते हैं या आप पॉजिटिव भी सोचते हैं? तो सोचें, जैसे ब्रेंडन कहता है कि सोचें ना दो तरह की होती है, एक ऑटोमेटिकली कम्स टू योर माइंड एंड देन देयर आर टाइप ऑफ थॉट्स जो विद प्रैक्टिस यू कैन डेवलप कि अच्छा ये सिचुएशन होगी तो ये करना है। ये इसी तरह से थोड़ी सी बात है जिस तरह आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। आपको एक दफा आप गली में जा रहे हैं और आगे से कुत्ता पड़ गया, तो अगली दफा जब भी कुत्ता आपके सामने आएगा तो आपका दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट पे आपको कहेगा कि यार ये पिछली दफा ये हुआ था, भागो भाई यहाँ, राइट। तो आपने पहला स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप हमेशा जो है ना वो नेगेटिव थॉट की तरफ जाते हैं, तो क्या उनको पॉजिटिव उस पर लाना है। देन अपने आप को जब आपने सोच लिया कि ये वो एरियाज हैं, देन पीरियोडिकली अपने आप को चेक करना। दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ रिपीटेशन। आपने सोच लिया कि यार मुझे जब भी ऑफिस में कोई लोग, मुझे बॉस काम को कहते हैं ना, तो मैं पहले ये कहता हूँ सर ये तो नहीं हो सकता, and then we start with something else. तो कहना इससे अगली दफा जब मुझे बॉस कहे कि ये काम करने आते हैं, let's give it a try. Very simple. कि आप बजाय इसके कि ये कहें कि यार ये तो नहीं हो सकता, you can also say let's give it a try. I think we can do it. तो आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम एरिया को, आपने अपने आप को डेली एवेल्युएट करना है एंड देन आपने ना थोड़ा सा लाइटन अप होना है, अपने मूड को बेहतर करना है। Smile is a wonderful weapon for that. Laughter therapy is a wonderful tool for that. Humor, ऑफिस में, घर पे, मजाक, ये चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करना जो पॉजिटिव लोग हैं, जिन लोगों के साथ बैठ के आपको बात करने का मजा आता है, वो लोग जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ना कि हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम ढूंढते हैं, राइट। तो और फिर आखिरी चीज जो मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा वो ये कि अपने आप से पॉजिटिव गुफ्तगू करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आप गाड़ी में कहीं पे खड़े हुए हैं, आप बैंक में लाइन में खड़े हुए हैं, अपने आप से पॉजिटिव गुफ्तगू आपको हेल्प करती है आपके पॉजिटिव इमोशंस को लाने में, एंड दैट एक्चुअली मेक्स यू पॉजिटिव इन लाइफ। Wonderful. Shuja bhai, same questions for you. What are 3 top strategies that you have adopted in your life to develop this positive mindset? और किस तरीके से इन सब स्ट्रेटजीज ने आपको हेल्प आउट किया टू ओवरकम सर्टेन चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ? हाँ जी वकास, ऑडियंस के लिए मैं बता देता हूँ, नईम भाई के लिए भी आइडिया आपको तो पता ही है। एक चैलेंज जो मुझे अपनी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा मैंने जिसको यानी कि फेस किया था, दैट वाज व्हेन आई वाज सफरिंग थ्रू अ वेरी chronic health disorder, that was a blood cancer, and it was all said and done कि जनाब आपके पास इतना टाइम रह गया और आप इतना सरवाइव कर सकेंगे। दैट वाज अ टाइम कि जिस वक्त मुझे यानी कि ये सब चीज़ों का ज़्यादा बेहतर आइडिया हुआ है कि एक्चुअली जिस वक्त आप रेजर एज के ऊपर चल रहे होते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको चीज़ें भी बहुत समझ आना शुरू हो जाती हैं। और फिर उस वक्त आपको ये अपने जो इनर डायलॉग है और जो सेल्फ टॉक है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और एम्पलीफाई होकर सुनाई भी देना शुरू कर देती है। तो मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई थी कि आपको अपने साथ जो नईम भाई ने भी बात की थी कि बहुत बुनियादी चीज है, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट को अडॉप्ट करना, इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ टॉक। क्योंकि वो जो आपके अंदर एक चैटर बॉक्स चल रहा है ना, उसको आपने एक्चुअली पॉजिटिव बनाना है। जिस तरह आपने वो बेसिक रिस्पॉन्सेस की बात की थी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, वो आपके अंदर एम्बेडेड है। आपने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू वट एवर लाइफ इज थ्रोइंग एट यू, इस जब ये आपका ऑटोमेटिक के ऊपर ये रिस्पॉन्स बन जाता है, it is said that you have adopted a positive mindset. पॉजिटिव माइंडसेट की हम बात तो बहुत ज्यादा करते हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो साइंस ने बहुत अच्छे प्रूव किए हैं कि आपको ये कैसे हेल्थ के अंदर आपको आपके लिए फायदेमंद है, कैसे ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, कैसे आपका हैप्पीनेस लेवल बेहतर हो जाता है और आप
और इसके बाद आपकी पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इट इज नॉट दैट कि आप इसको 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको, जिस तरह वकास ने कहा है कि इसको आपको इसके लिए स्ट्रेटेजीज जो हैं वो यानी कि अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, रादर मैं इसे कहूँगा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो जो मेरी टॉप स्ट्रेटेजीज हैं उनमें से तो एक ये है कि पहले जो हमने पहले शुरू में बात कर रहे थे अबाउट योर स्पिरिचुअल वेलबींग की, कि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि आप अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए रोज के रोज अगर आप कुछ करेंगे तो आपको अपनी सोचों को मैनेज करना, जैसा नईम भाई ने कहा था कि कुछ ऑटोमेटिक सोचें होती हैं और कुछ ऐसी सोचें जिन्हें हम खुद सोचते हैं, हम उसको कमांड देकर सोचते हैं कि मैं ये सोचना चाहता हूं। कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेते हैं, आप अपनी थॉट्स का और इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। क्योंकि जिस तरह कहा जाता है ना कि गुस्सा आ जाना और गुस्सा चढ़ा लेने के अंदर फर्क होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे के हाथ के अंदर हो, कि उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया, वो मेरे मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ, या वट एवर द नेगेटिव इमोशन और स्ट्रेसफुल इमोशन दैट आई एम फीलिंग बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स दैट आर आउटसाइड माई कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि मेरा अपने इमोशंस पे और अपनी थॉट्स के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो टेकिंग बैक दैट कंट्रोल इन योर हैंड इज द फर्स्ट थिंग। और मेडिटेशन करना ये आपको ये कंट्रोल जो है इसको रीगेन करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा ये कि आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर ये चीज शामिल होनी चाहिए कि व्हेन यू वांट द पॉजिटिव माइंडसेट टू बी ऑटो थिंक, तो ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर रीप्रोग्राम होना चाहिए। तो इसको उसमें रीप्रोग्राम करने के लिए आपको जो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी जो गुरुज ने बताई है दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं वो अफर्मेशंस कैसे आप तैयार करते हैं, वो यू कैन सी दैट, यू कैन गूगल इट, कि आप उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर तैयार करते हैं और आप कैसे उसको रिपीट करते हैं। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि एक्चुअली दैट रेपिटेशन रीप्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप अपने लिए इसी तरीके से एक और स्ट्रेटेजी है जिसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कि आप अपने दिन को और अपने आने वाली लाइफ को अच्छे से विजुअलाइज करें, पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर विजुअलाइज करें, बजाय इसके कि आप उसको पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये सोचें कि यार ये चीज गलत हो सकती है या दिस इज व्हाट आई डोंट वांट टू हैपन, ऐसा ना हो जाए कहीं। जो चीज अभी तक हुई नहीं है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के चांसेस बराबर बराबर है। तो अगर आपने अपने आप को कॉन्शियस होने के लिए या आपने कोई जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उसके लिए आप अगर नेगेटिव सिनेरियो को सोचते भी हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू विजुअलाइज योर डे गोइंग इन अ परफेक्ट फॉर्म, तो ये एक स्ट्रेटेजी है। और फिर उसके अलावा जो मैं लास्ट आपसे चीज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कहना चाहता हूँ जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दैट इज द एक्सेप्टेंस, दैट इज अ टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, कि इसको आपने इस तरीके से एक्सेप्ट करना है कि इट कुड नॉट बी बेटर देन दिस, दिस इज व्हाट दैट हैज बीन डन परफेक्ट बाय द ऑलमाइटी, क्योंकि अल्लाह ताला के निजाम के अंदर वैसे भी कोई गलती नहीं होती। तो अपने हाल को और जो कुछ भी है उसको टोटली एक्सेप्ट कर लेना, अपने दिए के ऊपर राजी बिर रजा हो जाना, that strategy helps you to plug yourself or pivot yourself in the present moment and be thankful to whatever is given to you. तो इससे आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, आप एंजाइटी से भी बचते हैं, डिप्रेशन से भी बच जाते हैं, और वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो भी इम्प्लांट हो जाता है इससे, और ओवरऑल आप जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ। और फिर जब आप इन्हीं चीजों को रोज रोज करते हैं, ओके, लास्ट स्ट्रेटेजी दैट इज जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ग्रेटिट्यूड से मुझे ख्याल आया कि जर्नलिंग योर ग्रेटिट्यूड, या उनको आपने रोज के रोज याद करना। तो दिस इज सच अ मैजिक एक्सरसाइज कि अगर आप रोज रात को सोते हुए सिर्फ 3 चीजें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दैट वेंट वेल इन योर डे, सिर्फ उनको एक दफा उस पर नजरसानी कर लेने से और इस अमल को रोज कर लेने से, the surveys and the research has shown that significantly raise your well-being and happiness level. So these are some strategies जिससे आप adopt करने से अपने आप को I think Shujab bhai, wonderful strategies, और मैंने I will tell you कि इसमें से कई strategies ऐसी हैं जो कि मैंने खुद implement की अपनी life के ऊपर,
and I have listened to Naeem Bhai ने भी इसमें से कई strategies हैं जो अपनाई हुई हैं. So we'll be going towards closing. We have a question from Asma. Okay, please enlighten us on what is difference between pleasure and happiness. और हमारे पास second question है, how do you live in difficult circumstances when every people around you is suffering? और आपकी पूरी country suffer कर रही हो और आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा negativity हो. So I want both of you to answer this question. पहले हम लोग बात कर लेते हैं pleasure versus happiness, and then फिर हम बात करेंगे कि what are your key actions when you are surrounded by negativity. So over to you, Naeem bhai. Thank you, Gazri. Thank you for the question. हैप्पीनेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, खैर इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली. हैप्पीनेस इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड. इसको हम नॉर्मली अगर आप बहुत सी जगहों पे देखें तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है. इसका मतलब है कि ये इट कैन नॉट बी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, तो आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में डिफरेंट टाइम फ्रेम में हो सकते हैं. और अगर हम प्लेयर की डेफिनेशन देखें, प्लेयर को देखें, तो दैट इज अगेन something different. I mean, it's a bit difficult to actually draw the line between the two. But again, player is मैं कहूँगा कि मोमेंटरीली हो सकता है, और हैप्पीनेस जो है वो अगर आप कुछ स्ट्रैटेजीज जैसे अभी हमने बात की हैं वो आप अपना लेते हैं तो यू कैन हैव intrinsic, extrinsic, time period जहाँ पे you become more happy. So I think the difference. बाकी सुजा भाई should enlighten us more on this. जी नहीं भाई, आपने almost you have covered it कि प्लेजर और हैप्पीनेस. बाकी हैप्पीनेस की कहते हैं कि जी कोई डेफिनेशन नहीं है, और इसको जैसे आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, इसकी वही डेफिनेशन होती है. तो एवरीवन नोज कि व्हाट मेक्स देम हैप्पी और व्हाट मेक्स देम सैड. तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन वही है जिसको आप डिफाइन करें. अच्छा सर, हैप्पीनेस वाकई इसी तरह है, दैट इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ बीइंग कि जब आपको व्हेन यू नो इट व्हेन यू आर हैप्पी. जब हम हैप्पीनेस और प्लेजर के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको आकर एक्चुअली मेरा ख्याल है कि इसको डिफाइन कर लेना या इसको समझ लेना, जो हमने शुरू किया था ना कि हमारी यूथ जो है वो क्यों एंजाइटी का बहुत ज्यादा शिकार हो जाती है, डिप्रेशन का. इट इज नॉट ओनली यूथ. अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अनहैप्पीनेस का शिकार हो जाते हैं, या दिन के काफी सारे हिस्से में दे आर एक्चुअली नॉट इन द पॉजिटिव मोड. तो उसकी एक वजह यह है कि हम प्लेजर और हैप्पीनेस के दरमियान में डिफरेंशिएट कर नहीं पाते. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों फीलिंग्स जो हैं ये पॉजिटिव आपके अंदर एक सर्च पैदा करती हैं, आपको एक थोड़ा सा वेलबींग का एहसास इससे पैदा होता है. लेकिन मेन डिफरेंस इसका ये है कि प्लेजर दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेस, ये जो आपको अपने हवासे खमसा से जो गुड फीलिंग्स मिलती हैं, ये जनरली दे कम्स इनटू द कैटेगरी और अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्लेयर्स. ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं इट इज लाइक दैट कि आप अपनी बॉडी को कंफर्ट दे देते हैं, आप अपने टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनको अच्छा खाने को मुहैया करते हैं, पिज्जा बर्गर जंक फूड वगैरह दिया, उससे आपके अंदर एक गुड फीलिंग पैदा होती है. लेकिन ये प्लेयर की गुड फीलिंग है. इसी तरीके से जब आप कोई चीज हासिल करना चाह रहे हैं और आपने उसको हासिल कर लिया, उससे जो आपके अंदर फीलिंग्स पैदा हुई, ये प्लेयर की गुड फीलिंग्स हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर की गुड फीलिंग्स जो है ये मोमेंटरीली गुड फीलिंग्स होती हैं. जब तक वो स्टिमुलस या वो जो जराए जो हैं जिनसे आपने वो पॉजिटिव फीलिंग्स हासिल करने की कोशिश की हैं, जब तक तो वो कायम रहते हैं, तब तक तो आपके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट रहती हैं. और जब वो चीज खत्म हो जाती है या वो पुरानी हो जाती है तो उससे वो गुड फीलिंग्स आना भी बंद हो जाती है. इसीलिए फिर इंसान, और जिस तरह बायोलॉजिकल सेक्स है, ये भी इट कम्स इनटू द अंडर द ब्रैकेट ऑफ प्लेयर फीलिंग. तो जब आपको जो नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि हम वो गुड फीलिंग्स जो हैं वो प्लेयर से हासिल करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये चीजें जो हैं वो एडिक्शन बन जाती हैं. हमारी खवातीन जो हैं या इवन कुछ मर्द जो हैं वो शॉपिंग करने से उन्हें कुछ गुड फीलिंग्स मिलती हैं. ठीक है, नई चीज खरीद लिया,
नई लॉन आ गई, नया नया ब्रांड आ गया, आपको लेने से पहले ये लगता है कि बस मुझे ये ले ली, चीज हासिल कर ली तो आई वुड बी वेरी गुड, जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। लेकिन उससे कितनी देर वो आपको गुड फीलिंग्स रहती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये तो प्लेयर की गुड फीलिंग मोमेंटरली होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और दूसरा ये है कि इनके अंदर एडिक्टिव नेचर होती है। आपको इन गुड फीलिंग्स को हासिल करने के लिए यानी कि बार बार इनको करना पड़ता है। ओके, नाउ कम टू द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड, दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप कोई ग्रोथ का काम करते हैं, जब आप कोई चैलेंज है जिससे आप पहले डर रहे थे, और जब आप उस चैलेंज को अबूर कर लेते हैं, आप वो अपना लेसन लर्न कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक गुड फीलिंग पैदा होती है। ठीक है, दैट गुड फीलिंग्स आर द गुड फीलिंग्स ऑफ द हैप्पीनेस। जब आप अपनी वैल्यूज को पूरा करते हैं, कोई मॉरल वैल्यूज हैं या जो आपने अपने लिए वैल्यूज सेट की हुई हैं, और आप यू गो अप टू योर स्टैंडर्ड, यू गो टू अप टू योर चैलेंज, तो आपके अंदर जो वेल बीइंग पैदा होती है, दैट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक्चुअली आपको ग्रोथ देती है, और ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होती। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर अवेयरनेस। ये आपके लेवल्स को, आपके वाइब्स को एक दफा हाई कर देती है, तो दैट लिव्स विथ यू। तो अगर हम लोग ये प्लेयर और हैप्पीनेस के दरमियान में अगर डिफरेंशिएट कर लें, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कौन सी चीज के पीछे जाना है और किस चीज को हमें छोड़ देना है। तो दैट यानी कि वो आपको ना सिर्फ ये कि बहुत सारा ठहराव दे देती है, और फिर हमारे टॉपिक की तरफ भी ले आती है कि दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। वंडरफुल शुजा भाई, आई मस्ट से कि नहीं भाई, और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी सलीस उर्दू और बड़ी आसान ज़ुबान के अंदर लोगों तक पहुंचा दिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आई जस्ट वांट 1 or 2 lines from you each कि what we should do during this situation, just in 1 or 2 lines. It can be a tip, it can be a message, it can be a strategy. What do you think what we should do in during this pandemic situation when there's a lot of negativity all around, and we know that in our neighborhood someone is suffering a lot, someone has just lost a job, someone is sleeping hungry, and there are so many things, और आप चाहते हुए भी नेगेटिव पॉजिटिव माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सो ये क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद अंजुम साहब की तरफ से आया था। सो आई थॉट कि इसको हम लोग हिस्सा बनाएं और इसी को हम लोग क्लोजिंग मैसेज भी अपना बनाएं। सो ओवर टू यू नईम भाई। देखिए विकास भाई, अगेन एक्सेप्ट करना, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट जवाब दूं, सबसे पहली बात है एक्सेप्ट करना सिचुएशन को, वट एवर इट इज। आपके किसी के नेगेटिव होने से, परेशान होने से, टेंशन लेने से, रोने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी, सिचुएशन वुड रिमेन देयर, राइट। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्ट करने के बाद उस शुक्रगुजारी के आलम में आ जाना कि या अल्लाह, ये मुसीबत, ये वबा, ये परेशानी तेरी तरफ से आई है और तू ही इससे हमें निजात देने वाला है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप शुक्रगुजारी के एक लेवल पे आ गए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सारी नेगेटिव चीजें आप यू कुड ट्रेन योरसेल्फ कि वो पॉजिटिव साइड पे आना शुरू हो जाएगी। आपको उसके अंदर से कोई अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू हो जाएगी। वो अपॉर्चुनिटीज लोगों की हेल्प करने की भी हो सकती हैं, वो किसी का ख्याल रखने की भी हो सकती हैं, किसी से बातचीत करने की भी हो सकती है, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखने की तरफ भी हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है और आप उसके पास बैठ के चंद लम्हे उससे बातें कर लेते हैं, मुस्कुरा के देख लेते हैं, तो ये उसके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा है। So acceptance and gratitude, I would say these are two words that are best, should be used in this situation. Over to you, Shuja bhai. मैं फिर अगेन यही कहूंगा कि नईम भाई हैज नेल्ड इट कि एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड जो है, ये दो चीजें जो हैं, ये आपको देखें, जब लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि आपके परेशान होने से या आपके
नेगेटिव व्हाट इफ सिनेरियो बनाने से ये चीजें फिलहाल तो चेंज यकदम नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे में अपने आप को परेशान करना या नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना कि क्या मजीद बुरा हो सकता है, तो ये आपकी अपनी एक चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो ये चॉइस अगर आप अपने हाथ में लेते हैं और जो कुछ भी हो रहा है आप उसके ऊपर लेस फोकस करते हैं एंड यू ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट इज स्टिल गुड इन योर लाइफ, तो एटलीस्ट इसके लिए इससे ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, बल्कि चूंकि आप लेस स्ट्रेस के अंदर होंगे तो वो स्ट्रेस आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी इंड्यूस नहीं होगा। तो आप वट एवर इज स्टिल गुड इन योर लाइफ आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप शुक्रगुजारी की बात कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जब वादा किया है कि आप मेरे जितने ज्यादा शुक्रगुजार होंगे मैं आपको उतना ज्यादा और दूंगा। तो परेशान होना इज नॉट अ चॉइस, कि परेशानी इज या उसको वरी कर लेना कि वरी इज एक्चुअली टोटली यूजलेस। तो अगर हम ये जो पॉजिटिव माइंडसेट की अगर बात करें ना, तो इसमें 3 चीजें मैं लास्ट बताना चाहूंगा कि व्हाट आर एक्चुअली द पिलर्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव और अडॉप्टिंग द पॉजिटिव माइंडसेट। उसमें एक बात जो हम बहुत दफा जिक्र कर सकते हैं, दैट इज द एक्सेप्टेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट, वट एवर इट इज वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और वो कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ये अपना इनर डायलॉग है कि ठीक है, चाहे आप उसको इस चीज से करें कि अल्लाह ताला के निजाम के अंदर जो चीज है वो राज़ी बेरज़ा उससे होना, कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मुझे उसके अंदर से देखना है कि व्हाट आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी, हाउ आई कैन टेक दिस मोमेंट फॉर माय बेनिफिट और फॉर माय ग्रोथ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल अराउंड मी। टाइम आप इसके अंदर कैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको वन लाइनर कहूंगा कि जिस चीज के अंदर भी ग्रोथ नहीं है वो टाइम वेस्टेज है। आप अपने लिए एंटरटेनमेंट को भी रखें, आप अपने अपने लिए रिलैक्सेशन के टाइम को भी रखें, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप अपनी ग्रोथ के लिए जरूर इस्तेमाल करें। योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। सो दीज आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज के जिसके अंदर रहकर हम अपने इस टाइम को बेहतर बना सकते हैं। और जो चीज अगर हम इस टाइम के अंदर अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, तो रेस्ट एश्योर के दैट वुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट। आई थिंक अगर हम लोग इस टॉपिक पे बात करते रहे तो शायद 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। सो हम लोग ऐसा इसको ही यहाँ पे क्लोज करते हैं। Once again, thank you so much for taking out time from your precious schedule. Though it was Sunday and आपका फैमिली टाइम था। आजकल तो वैसे हर दिन संडे होते हैं। कल अभी बहुत से लोग गिला कर रहे थे फेसबुक के ऊपर कि यार ठीक है संडे संडे था तो चलो कुछ ना कुछ हो जाता था, अब तो हर दिन संडे होता है तो अब तो बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं और झाड़ू भी लगाने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चले ये भी अच्छी बात है, आपको एहसास होगा कि व्हाट इज़ एम्पैथी और हाउ टू बी मोर एम्पैथेटिक विद योर वाइफ्स एंड योर मदर एंड योर सिस्टर्स, जो कि पहले ये सारा काम संभालती थी। आई बी क्लोजिंग इट नाउ। थैंक यू सो मच नईम भाई, थैंक यू सो मच शुजा भाई। नईम भाई और मैं ये सेशन स्टार्ट किए शुजा भाई के साथ, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, वी बोथ आर सर्वाइवर्स और इट इज़ a great honor for me to have you both on this show। और शुजा भाई आपकी क्योंकि नई एंट्री हुई है, आई होप आपको ये ओवरऑल जो भी हम लोगों ने एक महफिल सजाई है आपको आपने एंजॉय किया होगा एंड यू हैव बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ दिस होल सीरीज। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू नईम भाई, थैंक यू शुजा भाई। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में आई वुड लव टू शेयर कपल ऑफ थिंग्स। Remove 3 C's from your life. Number 1, comparison, competition and consumerism. जब आप कंपेयर करते हो, compete करते हो और कंज्यूमर आइटम्स के पीछे भागते हो, या कंज्यूमरिज्म से मुराद कि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की वजह से कि आप इसकी तलाश में होगे तो आपको खुशी मिलेगी। जब आप ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो you will develop a positive mindset and happiness will become ईयरली लाइफ करना आपकी डेली लाइफ का एक रिचुअल बन जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इस पर रिसर्च हुई है बट इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में शामिल करेंगे। और जिस तरह नेम भाई ने बात की थी कि वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो वी डोंट नीड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। अगर कोविड-19 की बात करें या कोरोना की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग आउट ऑन द वेबसाइट, पीपल आर मेकिंग मीम्स, पीपल आर मेकिंग वीडियोज। वी डोंट नीड टू ग्रैब ऑल दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज होगा क्या कि जब हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देखेंगे
कि कौन क्या बात कर रहा है, पॉलिटिक्स क्या कह रही है, जर्नलिस्ट क्या कह रही हैं, ब्लॉगर्स क्या कह रहे हैं, व्लॉगर्स क्या कह रहे हैं, तो वो क्या होगा कि हम लोग और नेगेटिव हो जाएंगे. सो इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही एब्जॉर्ब करें जितनी आपको रिक्वायर्ड है, एंड लेट गो ऑफ ऑल दीज अदर informations. And in my closing remarks, I would say life is a journey, not a race. And in this journey, there are so many milestones and there are so many missed shots. But one has to keep on the track with a positive mindset to keep going. Thank you so much once again. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी हमें दुआओं में याद रखें. Stay safe, stay at home, and take care of your neighbors, take care of your family. खुदा हाफिज. Thank you, Waqas. Thank you, Naeem bhai. Thank you. Thank you. It was a pleasure being here.